لیکن سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے جو سکھائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بندہ آیا ہے جو سکھائے گا, یہ دماغ سے نکالتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے. یہ بندہ آیا ہے جو صرف ڈسکس کرے گا, برین اسٹارم کرے گا. آپ کے اندر علم کا خزانہ موجود ہے جس کو آپ ہی نکالیں گے. صرف اس ڈسکشن سے ہوگا یہ کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے, ہم فوکس کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس طرف دھیان لگانا شروع کر دیں گے, تو ممکن ہے کہ ہمارے اندر جو خزانے موجود ہیں وہ ہم خزانے نکال سکیں. تو جو پہلا انفارمیشن ہے, جو پہلی ڈسکوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خزانے آپ کو باہر سے نہیں مل رہے, خزانے آپ کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو سکھلا کے بھیج دیا اچھائیاں اور برائیاں. اب آپ نے اس کو اپنے اندر سے, اپنی فطرت سے اس کو اجاگر کرنا. اچھا, آپ اس وقت جس ماحول میں اور جس گلوبل انوائرمنٹ میں موجود ہیں اس میں آپ دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیے, جو آپ کا جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کی جو امپورٹنس ہے وہ ہر جگہ پیک پر ہی. کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دنیا کے کونے پہ جائیں تو بولا جائے کہ یار یہ جو پروفیشن ہے نا آپ اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے. یعنی دنیا کی کسی بھی تہذیب میں, کسی بھی کلچر میں یہ وہ واحد پروفیشن ہے, یہ وہ واحد پروفیشن ہے جس کو کہا جائے گا کہ یہ اس کی ویلیو جو ہے اس کو رسپیکٹ سے شروع ہوتی ہے ویلیو. باقی دوسرے پروفیشن کی بہت کم پروفیشن ایسے ہوں گے جس کی ویلیو یا جس کا جو ایک انٹریکشن ہے وہ رسپیکٹ سے شروع ہوتا ہے. کہیں پہ کوئی شخص جائے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہ ہو, وہاں پہ صرف ایگریکلچر کا کام کیا جاتا ہو اور دیسی طریقے سے نیچر سے قریب رہ کے کیا جاتا ہو, وہ شخص بھلے بل گیٹ ہو تو وہ ایگریکلچر کے کسی بھی اس ایریا میں, اس انوائرمنٹ میں اس کی ویلیو, وہ اپنی ویلیو کو نہیں بتا سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ بیسٹ فٹ نہیں ہو رہا ابھی فی الحال. جو ایگریکلچر ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا فلسفی ہو یا سائیکالوجی ہو یا معاشیات ہو, سماجیات ہو, کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے, وہاں پہ اگر آپ کا انٹروڈکشن ایز اے ٹیچر کیا جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ویلیو سب سے پہلے جنریٹ ہو جائے گی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں 100 کا نوٹ رکھوں اور $100 رکھوں, تو اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ. بھائی $100 جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن آف اکانومی, کیونکہ اکانومی کے حساب سے جس کی زیادہ ویلیو ہے اس کو وی نو کہ ہمیں $100 کی زیادہ ویلیو ہے. لیکن ٹیچر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں جو ہے آپ کی پیپل انڈرسٹینڈ تھرو فطرت, نیچر بائی نیچر سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو بانٹنے کا پروفیشن ہے. لیکن کوئی اور دوسرا کوئی بھی پروفیشن ہوگا نا وہ حاصل کرنے کا پروفیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی بانٹنے کا عمل آ جائے گا وہاں پہ عزت شروع ہو جائے گی, وہاں رسپیکٹ شروع ہو جائے گی. جی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی رسپیکٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ذریعہ بنتا ہے علاج کا, وہ واسطہ بنتا ہے, ذریعہ بنتا ہے علاج کا. جو اللہ تعالیٰ جو ایک انسان کو صحت عطا فرماتے ہیں اس صحت کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے, دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے, بانٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس کی ویلیو, اس کی امپورٹنس ایک دم سے آ گئی. اس کے علاوہ اب آپ کو زیادہ ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی پروفیشنز کو سوچتے جائیے اور دیکھیے کہ اس میں سوسائٹی میں بانٹنے والا کون ہے, سوسائٹی سے لینے والا کون ہے. جو بھی سوسائٹی سے لینے والا ہے وہ پیور بزنس ہے, پیور بزنس. میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں, سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں. کارپوریٹ سیکٹر میں ہم جو ہیں, ہمارے اسٹورز ہیں یو ایس اے میں, یو کے میں, دنیا بھر میں. جیسے یہاں میٹرو امتیاز اسٹور, ایسے ہمارے کوئی 11,000 اسٹورس ہیں. وہ جو 11,000 اسٹورس ہیں اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو فلفل کرنے کے لیے یہاں سے چیزیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ جو سپلائرز ہیں، جو مینوفیکچرر ہیں، جو ہوم ٹیکسٹائل کے، ہم ہوم ٹیکسٹائل کو ڈیل کرتے ہیں، ہم بیڈ شیٹس اور ٹاول کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ جو ہوم ٹیکسٹائل کے جو مینوفیکچرر ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ ہمیں بظاہر بڑی عزت دیتے ہیں. بظاہر کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، ان کی مجھے انٹینشن یا نیت پہ مجھے بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک پرنسپل بھی ہے. اس پرنسپل کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بزنس لانے کا ذریعہ ہے، یعنی کیش لانے کا، بزنس لانے کا، بزنس جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی عزت نہیں کرے گا. تو وہ دراصل ڈر زیادہ رہا ہے، عزت کم کر رہا ہے زیادہ تر. وہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، ٹیچنگ کے پروفیشن میں جو ہے نہ کوئی پیسے کا نہ لین دین کا کوئی معاملہ اس سے شروع ہوتا ہے. یقیناً زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول و قواعد کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن ٹیچنگ کے معاملے میں الٹیمیٹلی جو چیز کلک ہو جاتی ہے نا کہ یہ بندہ تو دینے ہی والا ہے، یہ بندہ دینے ہی والا ہے، لینے والا نہیں ہے، تو ہے ہی دینے والا، اس کا کام ہی دینے کا ہے. یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پروفیشن میں بھی جو دینے والا عمل ہے وہ لینے والے عمل سے لنک ہو جاتا ہے. لیکن ٹیچنگ کا پروفیشن ایسا ہے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں، جیسے میں بولوں یار مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے، دیٹ از ٹیچنگ. کیا یہ مجھے چارج کریں گے؟ وکیل کے پاس جائیں گے، وہ چارج کرے گا. ٹھیک ہے. وہ پروفیشن اس نے اپنے مشورے کو لنک کر دیا ہے مانیٹری بینیفٹ. جہاں پہ بھی مانیٹری بینیفٹ آ جاتا ہے، اٹ مینس ہی از دا ٹیکر، ہی از دا گیٹر، ہی از دا ریسیور، ہی از ناٹ اے گیور. وہ گیور نہیں ہے، وہ گیور ہے لیکن کسی سودے کی بنیاد پہ، کسی سودے کی بنیاد پہ. آپ لوگوں کا پروفیشن ایسا ہے جو کسی سودے کی بنیاد پہ گیونگ نہیں، بنا سودے کی گیونگ ہے. اور وہ کس بنیاد پہ گیونگ ہے؟ وہ ہے، اس کا ورڈ ہے ریسپانسبلٹی. ونس یو کم انٹو دی فیلڈ آف ٹیچنگ، جو پہلا ورڈ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت الگ نہیں کر سکتے، وہ ہے ریسپانسبلٹی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹیچر بھی ہوں لیکن ریسپانسبل ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ میں، آپ اپنے اسٹائل میں، آپ اپنے افیکٹونیس میں، آپ اپنے جو ہے گیونگ کے جو پورا پروسیس ہے اس کو کیسے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر کر سکیں. اچھا، آپ کے ذہن میں کون سی بڑی ذات آتی ہے یا کون سی واحد ذات آتی ہے جو دینے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہے، ایٹریبیوٹ تو ساری اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، تعریفیں سب اس کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہے تو وہ گیور ہے، وہ دیتا ہے، صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے. دیتا کچھ نہیں، وہ دیتا ہے. آپ کسی بھی ایک ذرے سے اسٹارٹ کر دیں سوچنا، تو آپ کہیں گے کہ یار اس کا تعلق بن جائے گا وہ دے رہا ہے، اس کا تعلق بن جائے گا کہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ جو ذات ہے اس کا جو اتنا بڑا ایٹریبیوٹ ہے جس کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں کسی حد تک، اور اتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم جتنا کہ سمندر میں سے آپ چمچ لے کے جائیں اور ایک چمچ میں جتنا پانی آ جائے ہم اتنا شکر ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں اگر کریں. ایک صاحب تھے، میں ملاقات ہوئی ٹریننگ میں، وہ اکثر مجھے ملتے تھے، تو یہ کوئی صاحب مجھے سنا رہے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹلی کوئی صاحب مجھے سنا رہے ہیں، تو ٹریننگ میں ملتے تھے. اچانک وہ گئے، کہنے لگے یار وہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے. بھائی پوچھا کسی سے، بھائی کدھر ہے کدھر ہے؟ تو کہنے لگے یار وہ ان کا پرابلم آ گیا تھا ایک میڈیکل، تو ان کا ایک آپریشن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں. کیا میڈیکل پرابلم آ گیا تھا بتائیں تو صحیح. کہہ رہے وہ ان کا اچانک سے یہ انگوٹھا جو ہے نا کام کرنا چھوڑ گیا، اچانک سے یہ انگوٹھا کام کرنا چھوڑ گیا، اس میں جان ختم ہو گئی، اس میں موومنٹ ختم ہو گئی. بھائی سی ٹی اسکین ہوئے، ایم آر آئی ہوا پوری باڈی کا، بھائی کہاں سے کون سا نس ہے، کون سا کہانی ہے جو ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے. پتا چلا جی اس کو وہ جو نس آتی ہے وہ یہاں پہ کونی پہ کہیں جا کے جو ہے وہ اندر جو اس کا جو موومنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کہیں پریس ہو گئی، اور اس نے ایگزیکٹلی جا کے انگوٹھے پہ اثر کیا. انگوٹھا رک گیا ان کا، انگوٹھا ان کا رک گیا. کہیں جی اب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں جی ان کا آپریشن ہو رہا ہے. کہ کتنا خرچہ ہے؟ کہ 4-4.5 لاکھ روپے کا آپریشن، 4-4.5 لاکھ روپے کا آپریشن. تو آپ لوگوں کے سب کے انگوٹھے ہل رہے ہیں ویسے؟ چیک تو کریں، ہل رہے ہیں. اگر رک جائے نا تو 4.5 لاکھ روپے رک جائے، اگر رک جائے
تو 4.5 लाख रुपए खर्चा है. अब ये बताइए, आपने पहली दफा आए देखें, अंगूठा हिलने का शुक्र अदा कभी किया है? भाई हमने किया होगा, भाई मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, भाई बहुत अच्छे से हालात अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, बड़ी बड़ी जगह पर अंगूठा हिलने का तो हमने कभी शुक्र अदा, मेरा नहीं खैर, मैंने तो नहीं किया था, मैंने नहीं किया था. तो इट मीन्स कि अंगूठा अगर रुक जाए तो 4.5 लाख रुपए का खर्चा है. तो इट मीन्स कि आप इसको, कोई भी चीज आपकी जिंदगी की जो बेमानी है वो 1 सेकंड को रुक जाए ना, तो खर्चा तो वो साइंस की डिस्कवरी है कि वो आज इलाज कर सकता है, लेकिन उसका नेमुल बदल कुछ हो सकता है. एक साहब थे, उनसे मेरी चाइना में मुलाकात हुई, तो उनके बारे में मुझे बताया, कहने लगे यार ये बड़ा यूनिक बंदा है. क्या यूनिक बंदा है? कह रहे इसको पसीना नहीं आता है. तो मेरे साथ एक साहब थे, कह रहा यार खुशकिस्मत आदमी है यार, हम तो ऐसे ही गर्मी में रहते हैं यार, ऐसे कपड़े खराब, ये खराब, ठीक है, जिस्म खराब, ठीक है, आप खुशबुएं लगाएं, और मतलब नेगेटिविटी बंदे की, मतलब देखिए नेगेटिविटी तो नेचुरल है बहुत. नेगेटिविटी आप सबसे पहले समझिएगा नेचुरल होती है. इंसान, क्योंकि इंसान के अंदर नफ्स जो काम कर रहा है ना, वो सबसे पहले नेगेटिविटी ट्रिगर करेगा कोई भी. फॉर एग्जाम्पल, बाहर अगर कोई आवाज आ जाए ना, अल्लाह ने अगर धुड़ुम करके, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड? ब्लास्ट. सबने बोला ब्लास्ट. क्यों भाई? कोई पटाखा नहीं हो सकता, कोई शादी की तकलीफ नहीं हो सकती, कोई खुशी नहीं हो सकती, कोई गाड़ी का वो यार किसी का टायर फट गया होगा, डायरेक्टली वी रीच टू पीक. ये एग्जाम्पल अभी सामने आ गई, सबने बोला ब्लास्ट, सबके दिमाग में आया ब्लास्ट. क्यों? इट्स वेरी नेचुरल. तो हम लोग अंदर से जो डरे हुए हैं, हम बहुत नेचुरली नेगेटिविटी को फौरन ट्रिगर कर देते हैं. तो वो जो दैट्स द रीजन कि वो जो चाइना के साथ वो साफ तो कहने लगा पसीने नहीं आते तो अच्छी बात. अब ये बताइए, आप पसीना ना आए किसी को तो अच्छी बात है बुरी बात है? या तो आप किसी न किसी एंगल से कह रहे हैं, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं आज के हालात और वाकयात पर. हम अपनी जिंदगी को रिस्पॉन्ड करते हैं आज के हालात और वाकयात पर. मुझे ये साहब पसंद नहीं आ रहा है तो बस ये मेरी नजरों से दूर हो जाए, आज के हालात और वाकयात. मुझे ये जॉब समझ नहीं आ रही तो बस मुझे बेहतर जॉब मिलनी चाहिए, ये आज के हालात और वाकयात है. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसकी जर्नी क्या है, उसका जो है एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब कुछ कंसीडर नहीं करते. जो पसीना इंसान के जिस्म में आता है वो आपका नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. इट्स अ नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. उसको समझें. किसी रूम में बाहर जैसे गर्मी है, आप कमरे के अंदर जो एयर कंडीशन में बैठते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर स्वेटिंग इज एक्चुअली द नेचुरल एयर कंडीशनिंग. अगर के स्वेटिंग नहीं आती तो आपकी बॉडी एक टाइम आएगा कि वो आपके जितने भी मसल्स हैं ना, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है. जब आउटसाइड एनवायरनमेंट में जब हीट होता है तो आपकी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब करे, उसके लिए स्वेटिंग होती है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से उसको मेंटेन कर ले. दैट इज द नेचुरल एयर कंडीशनिंग. तो अब नेचुरल किसी शख्स के पास अगर ये नहीं है ना, और हीट, उसकी बॉडी का हीट टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको ऊपर से बॉडी को काम करना पड़ता है. कितनी बदलाव डालेगा. तो there are lots of things, there are countless things जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. तो इसी हिसाब से मैंने टीचिंग का एक छोटा सा एक वो दिया आपको कि आप किस प्रोफेशन में हैं. पहले इसको समझिए. आप उस प्रोफेशन में हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को रखा और फरिश्तों को रखा. जो फरिश्ते या जो अंबिया किराम के पास पैगाम लेकर आते थे, तो ये वो प्रोफेशन है. इस प्रोफेशन की जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा बड़ी हैं, इज्जत जितनी ज्यादा बड़ी है, एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है. हम जो आज बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं है. सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें. एवरीवन, मैंने बोला जब वंस यू कम इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल. फौरी तौर पे आप सबसे पहले जो सबसे पहले हो गए, बट यू बिकम इज रिस्पॉन्सिबल. मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया, मैं टीचर. अब
اس کی رسپانسبلٹی آپ کی پڑھا صرف کس چیز کی ہوتی ہے رسپانسبلٹی بتائیے؟ ٹیچر کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سر اپنے اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کرنا، پرسنل گروتھ، اس کی ایتھکس، سوشل گروتھ کرنا، اس کو اچھا برا بتانا، اس کی تمیز سکھانا. ٹھیک ہے، اور بتائیے. بہت اچھی بات بولی بھائی نے، تربیت کرنا. ماشاءاللہ بہت زبردست بات بتائیے. اور بتائیے. ان کے مائنڈ کو سمجھنا، ان کے مائنڈ کو سمجھنا. بہترین بات یہ انہوں نے کیپچر کر لیا. بہت اچھی بات بولی بہن نے کہ مائنڈ کو سمجھنا، جس کو جو سبجیکٹ ہے جس کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں. اور بتائیے. نالج، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بنایا جائے. کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کا ایکسپرٹ ان کو بنایا جائے، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا. بہت اچھی بات ہے. اور کوئی بولے گا؟ ٹیچنگ کے اعتبار سے اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا تاکہ بچے ایزیلی ہینڈل کر سکیں. بالکل بہترین. اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، کیونکہ انوائرمنٹ ہی الٹیمیٹلی جو ہے اس کو گرو کرے گا، اس کو ڈیولپ کرے گا. کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں، مطلب ماحول سے کمپیئر کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ کوئی ماحول، کوئی چینج، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو خدا سے بڑی ہے. اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے ماحول کی. اور کوئی بہن کوئی بھائی اس کے مائنڈ کو سر، اس کے مائنڈ لیول کو سمجھنا کہ بچے کا مائنڈ لیول ہے کیا، اس لیول کے اوپر جا کے ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اس بچے کو، تاکہ وہ یہ جو اعتراضی کمتر جو شکار ہو جاتے ہیں کچھ بچے، لائک کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، تو اس لیول سے اس کو باہر نکالنا تاکہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. یہ آپ نے اب صحیح مائک لگاؤ. یہ آپ نے جو بات کہی ہے دیٹ از ویری امپورٹینٹ. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹیچر ہیں جو اس تک پہنچتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری کو اس حد تک رکھتے ہیں کہ جی what I have I should just immediately deliver. That is ان کو اپنے گھر کے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا. بہت بہترین بات بولی. ان کو اپنے بچوں کی طرح، اپنے گھر کے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا. اچھا یہ جو سارے تھاٹس آ رہے ہیں نا، جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرے. کیونکہ دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں نا، یہ برین اسٹارمنگ ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو کہ یار یہ پورے گروپ آف 40-30 پیپل سے یہ چیز نکل کے آ رہی تھی، تو یہ آپ کی لرننگ کے لیے، میری لرننگ کے لیے، سب کی لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یو شوڈ رائٹ، بیکاز جو آپ سنتے ہو اس کو آپ 70% بعد میں یاد رکھ پاتے ہو. جو آپ لکھ لیتے ہو اس کو آپ 90% یاد رکھ پاتے ہو. جس کو لکھنے کے بعد آپ ریپیٹیڈلی اس کو دیکھ لیتے ہو اس کو 98% یاد رکھ پاتے ہو. تو زندگی میں اگر اس سیشن کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے تو صرف سننا نہیں ہے، بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اس کو پھر دوبارہ دیکھنا بھی ہے. تب آپ 98% پہ پہنچیں. ٹھیک ہے جی. تو ایوری انفارمیشن جو بھی دے رہے ہیں، ایوری تھنگ از نالج. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے جو بات بولی گھر کے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا، دس از دی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو آج کی ضرورت ہے. جو آج کی دنیا چینج ہو گئی ہے، وقت تبدیل ہو گیا ہے. وہ جو استاد ہوتے تھے کہ کھایا، مارا، پیٹا، ڈلیور کیا، نمبرز، گریڈز کے حساب سے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا، بچوں کو ڈیوائڈ کیا، دیٹ از ناٹ دا اسٹوری ایٹ آل. ناؤ دی تھنگس ہیز چینج، ڈائنامکس ہیز چینج، گلوبل ورلڈ ہیز چینج، چیلنجز آر ڈفرنٹ. تو آپ نے اس کے حساب سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اچھا، یہ جو پیچھے کوٹ لکھا ہوا ہے، بڑا بہترین کوٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جی a teacher affects eternity. اس کا کوئی مطلب بتانے کا کشف کرے گا. ایک استاد اثر ڈالتا ہے، ایک استاد اثر ڈالتا ہے لامحدودیت تک، اینڈ لیسنس. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا، اس دنیا کی جو میننگ ہے نا، اور اس دنیا کی کسی بھی شے کے جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ اینڈ اینڈ، اسٹارٹ اینڈ اینڈ. ایوری تھنگ وچ ول اسٹارٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. کہ جو چیز شروع ہوگی وہ ختم، وہ آخر ہوگی. جو چیز پیدا ہوگی اس کا اختتام ہوگا، کیونکہ ابتدا کے ساتھ اختتام. جس چیز کو زندگی ملے گی اس کو موت ملے گی. اب یہ جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں یہ خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے آپ کی طرف.
खुदा से रिलेटेड नहीं, ना वो पैदा हुआ है ना वो मरेगा, ना उसकी इब्तदा है ना इख्तिताम है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका एंड है। ये सब इंसानों और दुनिया की उसकी मखलूकात से मुताबिक है, ठीक है। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके हम कह रहे हैं कि उसका जो असरात हैं, जो टीचिंग के असरात हैं वो खुदा के इस एट्रीब्यूट से जाके लग रहे हैं कि जो टीचिंग के असरात हैं वो एंडलेसनेस पे जाके इफेक्ट कर रहे हैं, यानी उसकी लामहदूदियत तक जाके इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे आपने एक बच्चे की जिंदगी अगर तब्दील कर दी, उस बच्चे ने आगे जाके कितनों की जिंदगी तब्दील करनी है, यू नेवर, आपको नहीं पता। एक बच्चे की जिंदगी अगर आपने तब्दील कर दी, आप क्या समझते हैं ये क्या एक शॉर्ट टर्म सौदा है? दिस इज द डील, दिस इज द ट्रेड ऑफ एंडलेसनेस। ट्रेड ऑफ एंडलेसनेस इज टीचिंग। जो आप ट्रेड कर रहे हैं अल्लाह के साथ, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो एंडलेसनेस है। एक अगली स्लाइड पे आप जाइएगा तो आप एक बीज लगाते हैं, उस बीज के जो असरात मुझे बता पाएगा कोई कि वो जो बीज एक पौधे को लगाया है वो क्या देगा, ये बताइए। किसी के दिमाग में आए वो बीज क्या देगा? फल देगा, साया देगा। फल देगा, साया देगा। साया देगा। बीज क्या देगा ये बता दे बस। बीज क्या देगा? फायदा देगा, ठीक है। और क्या देगा? लकड़ी देगा, ऑक्सीजन देगा, शेल्टर देगा, आफात से बचाएगा, आफात से बचाएगा, जमीनी आफात जो एनवायरनमेंट को साफ रखेगा। वो एक बीज, ठीक है। अच्छा, वो एक बीज कितने दरख्त देगा? आपने बात बोली ना, इन्होंने भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, जंगल देगा सबसे पहले तो, यानी ये वहां पहुंच गया। कह रहे हैं वो बीज से दरख्त होगा, दरख्त से और फल निकलेंगे, फल से और बीज निकलेंगे, बीज से और फिर दरख्त लगेंगे, और से और होगा, और से और होगा, और ये एंडलेसनेस पे चलेगा, इटर्निटी पे। उन्होंने बोला जंगल देगा, मतलब एक बीज की बात हो रही है, यहाँ रखा हुआ है, बोला जंगल देगा। अब ये जो आप क्लास में जाते हैं ये सब सीड्स हैं, आप इनको सीड्स कंसीडर कर सकते हैं कि जो है ये बीज है, उनको आप देखें, अगर ये सीड है और सीड के अंदर, इसके अंदर जंगल छुपा हुआ है, अगर आप ये तस्वुर कर लें कि यार ये तो जंगल का बायस बनेगा, पूरी कायनात में कहां कहां खुशबू बिखेरेगा पता नहीं है, कहां कहां ये फल बांटेगा पता नहीं है, कहां कहां ये जो है इसके असरात जाएंगे पता नहीं है। तो ये बीज मेरे हाथों में है। अब या तो वो बीज आपके हाथों से फर्टाइल होके निकल जाएगा, या फिर जाया भी हो सकता है, जाया भी हो सकता है। हमारी देखें इंसान ही है ना, गलतियां हो सकती हैं। अब मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊं, मैं फोर्थ क्लास में था, फोर्थ और फिफ्थ में, तो मेरे मार्क्स आते थे, मतलब मुझे जो अपनी रिपोर्ट कार्ड विजुलाइज हुई है, दिमाग में प्रिंट हुई थी रिपोर्ट कार्ड, आप लोगों की भी हुई होगी, नहीं हुई? मेरी हुई है, मेरी बचपन की कुछ रिपोर्ट कार्ड है ना, प्रिंट हुई है मेरे दिमाग में। और वो क्या प्रिंट हुई है, मैं नंबर उर्दू में 6 नंबर, 10 में से नहीं, इंग्लिश में 5 नंबर, तो आई फील के 5 नंबर मिले कहां? मतलब टीचर कहीं गलती कर गई। मैथ्स में तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, 2 नंबर, शायद डेट डालने के नंबर दिया। तो ये प्रिंट हुई है और मैं इसको प्राउड करता हूँ। आप हैरत कर लोगे यार, ये नंबर आए कुछ प्राउड कर रहा है बंदा, ये कौन सी साइंस है, ये क्या पढ़ाने आया है, नंबर कम पे प्राउड कर रहा है। नंबर कम पे प्राउड नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं उस सिचुएशन पे प्राउड कर रहा हूं जिसने मुझे कोई और रास्ता दिखाया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं उसको बड़ा परेशान रहता था, मेरे घर वाले कहते थे यार, ये जो मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, घर वाले कहते थे यार इसका होगा क्या। ये जुमला कभी सुना है आपने? हो सकता है अपनों से सुन लिया हो कभी। इसका बनेगा क्या, ये इतना कॉमन सेंटेंस है हमारे माशरे का कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने या तो सुना होगा या आपने किसी को सुना दिया होगा, ठीक है।
آپ میں پوچھ نہیں رہا لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اکثر یار اس کا بنے گا کیا, اس کا ہوگا کیا, یار یہ تو ڈم ہے, یہ فیل ہے, یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا, تم کرو گے کیا زندگی میں, تمہیں پتا ہے آگے تم تو گئے. اچھا یہ جو ساری سوچ ہوتی ہیں, یہ جو سارے چیزیں ہوتی ہیں, یہ میں بحیثیت بچہ 5ویں کلاس کا آج بھی یاد رکھتا ہوں اس وقت کے خیالات کو, اس وقت کے احساسات کو, کہ میں سوچتا تھا کہ یہ تو طے ہو گیا میرا کچھ نہیں بنے گا نمبر 1. ٹھیک ہے, میں سوچتا تھا اس وقت, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ اتنے اچھے ٹیچر ہیں, اتنے بڑے ٹیچر ہیں, یہ مجھے بول رہے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں بنے گا, تو غلط تو نہیں بول رہے ہو, غلط تو نہیں بول رہے, تو اٹ مینس کہ میرا کچھ نہیں بنے گا. یہ جو بلیف سسٹم ہے کہ میرا کچھ نہیں بنے گا, اگر آپ نے کسی بچے کو دے دیا تو وہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ بول تو بولے ذرا, ناکامی ہے. کس چیز کی ناکامی ہے؟ اس کے اوپر پریشر. اگر کامیابی ایٹرنیٹی مل رہی ہے نا, لامحدودیت تک مل رہی ہے کسی کو کچھ دینے کی, تو لامحدودیت تک آپ نے اگر اس کو کچھ کنٹامنیٹ کر دیا, کچھ اس کے دماغ میں جو ہے مکس کر دیا, کوئی ایسی چیز آپ نے ڈال دی جو کہ اس کو زندگی کو اس کو خراب کر سکتی ہے, اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے, تو وہی پھل وہ پھیلائے گا آگے, وہی خوشبو ہے یا بدبو ہے وہ وہی پھیلائے گا آگے. آج جو دنیا کو آپ دیکھتے ہیں اس وقت, بھائی میں کسی سے پوچھوں پوری دنیا اچھی ہے, کیا بولیں گے؟ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, ایسا ہی ہے, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, کچھ سخت ہیں کچھ نرم ہیں, کچھ جو ہیں ہمدرد ہیں, کچھ ظالم ہیں, کوئی مظلوم ہے, سب ہیں یہ. تو یہ کس کا پروڈکٹ ہے؟ یہ کسی نہ کسی کا تو پروڈکٹ ہوں گے, خود نہ خود تو نہیں ہوگا, کوئی اچھا ہو گیا کوئی برا ہو گیا, ایسا کیسا ہو گیا بھائی؟ اسی دنیا میں ہے, ایسا تو نہیں کہ یار مارس میں جو تھے نا وہاں کی آبادی ہے, یہ وہ بڑے تیز ہیں, وہ جو ہے وہ خوار قسم کے لوگ ہیں, وہ جو فلموں میں اکثر دکھاتے ہیں, وہ دوسرے دنیا کی جو ہے وہ ایلینس آ گئے, کچھ آ رہا ہے, کھا جاتے ہیں دماغ, ایسا تو نہیں ہے نا بھائی, ریئل لائف میں ایسا نہیں ہے. تو اس دنیا میں جو برائی ہے یا اچھائی ہے وہ ہمارا ہی آپ کا پروڈکٹ ہے, ہم آپ کے جیسے لوگوں کا ہی پروڈکٹ ہے. یہ اگر دنیا اچھی ہے تو ہم آپ کے جیسوں میں سے ہی کسی کی وجہ سے اچھی ہوگی, اگر یہ دنیا بری ہے تو ہم آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی بری ہوگی. ہم نے کسی کوئی پروڈکٹ نکالا ہوگا نا, ہم نے کوئی انپٹ دیا ہوگا نا. تو یہ جو آپ بچے ہیں یہ آپ کا سیڈ ہے, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ 5ویں کلاس میں میری یہ سچویشن تھی, میں ایسا سوچ رہا تھا, میرے دماغ میں یہ فیڈ ہو گیا تھا, اس کے بعد اچانک سے ایک دم سے لائف چینج ہو گئی. 6 کلاس میں اچانک سے لائف چینج ہو گئی, اسکول چینج کر دیا, کچھ ٹیچرز چینج ہو گئے, کچھ ٹیچرز نے اچانک سے ایک چیز ٹریگر کر دی دماغ کے اندر, ٹریگر کر دی. اور وہ کیا ٹریگر ہو گیا کہ انہوں نے پروف کر دیا کہ تم تو بیسٹ ہو, تم بہترین ہو, تم اللہ کی وہ مخلوق ہو جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور باقی سچ, یہ بات تو ہمیں ابھی سمجھ میں آئی, انہوں نے یہ مجھے سمجھا ایسا ہے. تو اس 6 کلاس میں میری پوزیشن آ گئی. تو پورے خاندان میں پورے جو مجھے پڑھاتے رہے تھے, ان کو جب 6 کلاس کا رزلٹ پتا چلا تو وہ ان کے منہ کھلے تو کھلے رہ گئے, کیونکہ ان کا بلیف سسٹم کچھ اور تھا. ان کا بلیف سسٹم تھا کہ اس کا ہوگا کیا. تو یعنی کہ اب 2 ایگزامپلس میں نے آپ کو بتا دی. ایک ایگزامپل جہاں پہ میرا بلیف سسٹم کمپلیٹلی نیگیٹو ہو گیا تھا اور کنٹینیو کرتا تو پتہ نہیں کہاں اینڈ کرتا, اور دوسرا بلیف سسٹم ایسا جنریٹ ہوا کہ جس نے مجھے ٹریگر کر دیا, کہیں پہ مجھے کوئی چیز کلک ہو گئی, اندر سے کوئی چیز باہر آئی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی. تو دونوں میں تعلق, کامن چیز کیا ہے دونوں میں؟ ٹیچر. دونوں میں کامن چیز ٹیچر. تو آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے بھائی؟ اگر اس وقت سامنے بیٹھ کے میں آپ کو کسی بات کو کہنے کا استطاعت رکھ پا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے, یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. اور یہ جو ہو پا رہا ہے تو وہ اگر اس ٹیچر کا عمل دخل ہو گیا, بالکل ہو گیا, اس ٹیچر کا جس نے 6 کلاس میں کوئی چیز ٹریگر کر دی, تو ڈو یو وانٹ ٹو بی دیٹ ٹیچر کہ جو آپ اپنے بچوں میں ٹریگر کر دو؟
क्या वो बनना चाहेंगे कि यार मेरे बच्चे जो है पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या बन जाए, कितनी अच्छाई और पॉजिटिविटी और उजालों को जो है बांटे। अगर वो करना है तो आपने फिर सबसे पहले जो करना होगा ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अब आपने सोचना है कि आपने भी तालीम से गुजरे होंगे, ठीक है जी। आपने सोचना है कि कौन सा ऐसा टीचर था जिसने आपकी जिंदगी को चेंज किया। कोई ना कोई लम्हा जरूर होगा ऐसा जिस टीचर ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, जिस टीचर ने आपको क्या लिखा है, हु वॉज योर बेस्ट टीचर एट स्कूल कॉलेज, हाउ डिड ही और शी इंस्पायर। सबसे पहले उस बंदे का आप नाम लेंगे। आज हम उसको क्या देंगे, ट्रिब्यूट देंगे उस शख्स को जिसने आपको तब्दील किया। ये उसका हक बनता है, उस टीचर का हक बनता है। सबसे पहले तो उस टीचर का नाम जो इंस्टिंक्ट आ रहा है ना दिमाग में, फौरी तौर पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग सकीब भाई का नाम लेते हैं भाई ये है भाई ये बेहतरीन है, ये तो है बेहतरीन माशाल्लाह, मैं इनका नाम लिखता हूँ 10 जगह जाके लेकिन आपकी जिंदगी में 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में कोई टीचर एकदम से क्लिक हो गया, क्या टीचर था, क्यों वो जो क्या टीचर था, पहले टीचर का नाम लिख लें, चेंज नहीं कीजिएगा, फिर लिखें भाई कौन सी चीज तुम्हें ऐसी अच्छी लगी उसकी जिसकी वजह से निकला भी उसे, वो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए तो मुझे बता दीजिए। She was Miss Rahal, she was my English teacher at school. तो उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि वो हमेशा मोटिवेट करती थी। जैसे आपने अपनी स्टोरी शेयर की कि डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी पहली जो क्वालिटी थी वो ये थी कि वो हर बच्चे को मोटिवेट करती थी टुवर्ड्स लर्निंग। उन्होंने मेरे अंदर एक सेल्फ स्टीम पैदा की कि पहले बहुत डरते थे कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए। पहले ग्रामेटिकली पढ़ाया जाता था, टेंस टेकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। उन्होंने आगे हमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना शुरू। पहले उन्होंने हमारी लिसनिंग बिल्ड की, उसके ऊपर उन्होंने हमारी स्पीकिंग बिल्ड की, जिसको एडवर्ड बच्चे सीखने लगे। उसके बाद हमारे अंदर एक सेल्फ स्टीम पैदा हुई कि यस वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो हम भी बोल सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्पीचेस में, डिफरेंट कॉन्टेस्ट में, तो उन्होंने एक सेल्फ स्टीम बिल्ड की। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दिए। तो आपने बताया टीचर मिस राहत ने इनके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप की। सेल्फ स्टीम अगर अंडरस्टैंड और अच्छे अल्फाज इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सेल्फ स्टीम एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा यकीन है जो बताता है कि आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। और वो क्यों होता है, स्टीम निकला है एस्टिमेशन से, एस्टिमेट, किसी चीज का एस्टिमेट लगा। भाई कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, आपने ठेकेदार को बुलाया, आपने बोला यार इसका बता एस्टिमेट तो बता दो, अब इससे समझ आ गया होता है यार एस्टिमेट किया यार ये 2 मंजिला इमारत का एस्टिमेट, तो एस्टीम निकला है एस्टिमेट से। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं अपना एस्टिमेट लगाता हूं, मैं अपने आप को खड़ा करता हूं कि मेरा तो कुछ होगा ही, मैं तो कर नहीं सकता, ये एक सेल्फ एस्टीम है। और इन्होंने बताया कि टीचर ने इनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ा दी कि अंदर से भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, हो गई बात खत्म, अब दुनिया कुछ भी कहती रहे। दैट इज सेल्फ एस्टीम, कि आपका अंदर का यकीन कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत अच्छी एग्जांपल दी, और जो चीज ट्रिगर करी ना उन्होंने आपके अंदर, दैट इज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक, क्योंकि वो एंड ऑफ द मतलब जब तक आप पढ़ा रही हैं यही सेल्फ एस्टीम आप बच्चों को देती रहेंगी, बच्चे इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। और कोई एग्जांपल? Sir, the teacher who inspired me was Sir Saroj. I lost my confidence for 8 years, but when I came in grade 11, so he triggered my confidence and self-esteem. That was very important for myself. माशाल्लाह, I'm very thankful to him. तालियां होनी चाहिए दोनों टीचर्स की तरफ से। सर सरोज ने इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस अब मैं क्या बताऊँ तो आप लोग को समझ सकते हैं कि जिस दुनिया में निकल के आपको कम्पीट करना है, the most important thing is confidence. If you want to say something, if you want to prove something, if you want to convince someone, if you want to explain someone, the first thing which you want, which you need is confidence.
कोई और एग्जाम्पल देने जाएगा, हम 3-4 लेंगे ताकि आगे बढ़ सके। सर मैं अपने तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि मैं कोई एक स्पेसिफिक टीचर नहीं, क्योंकि मेरा अंदर बस एक डर था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन एक मेरे टीचर थे, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद शाहिद, तो उन्होंने मुझे जब वो क्लास देते थे तो वो ये बात कहते थे कि बस आपने डरना नहीं, बस आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो उनकी एक बात आज तक मेरे जहन में है कि आप डर एक वाहिद ऐसी चीज है जिससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, इसको आप मैनेज कर सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो। आप इसका ये नहीं हो सकता कि छुटकारा हासिल करो, आप इसके साथ इसको गुलाम बना सकते हो या इसको गुलाम बन सकते। तो उन्होंने, टीचर ने इनको डर की गुलामी से निकाल के डर को इनका गुलाम बना दिया। ये जुमले इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर गहराई में जब सोचते रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि डर की गुलामी से निकल के आपने डर को गुलाम बना दिया। और कोई भाइयों में से भी कोई बता दे यार। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर स्टेज बहुत अच्छे टीचर्स मिले। तो मेरे पास एक नंबर है लिस्ट की जिसमें मेरे पास बहुत सारे टीचर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। बट स्पेसिफिकली अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूँ, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई गॉट एक्सीडेंट, इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट और मैं तकरीबन 6 से 7 महीने तक अपनी स्टडीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। तो तकरीबन एग्जाम्स में 1 महीना रह गया था, आई वॉज होपलेस। मैंने कहा कि नहीं अब मैं पेपर नहीं दे सकता बिकॉज मैं इस कंडीशन में ही नहीं हूँ, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और ज़ाहिर बात उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स से वैसे हम डर के था। बट देयर वाज अ टीचर, हिज नेम वाज सर अब्दुल रहमान, वो मेरे कोचिंग सेंटर के टीचर थे। उन्होंने कॉल की बाकायदा मुझे और बोला नहीं आप आएँ, हम इंशाल्लाह इस पर काम कर लें। और उन्होंने उस 1 महीने के अंदर मुझे एक दिन में सर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की कंटिन्यूस क्लासेस दी। बेहतरीन, माशाल्लाह। बताइए इन टीचर ने इनके साथ क्या किया, ये बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेट किया और हौसला अफजाई की है। हौसला अफजाई की है। ये बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए। आगे बढ़ने का हौसला किया, डर निकाली, मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं। एक चीज होती है जाया नहीं होने दिया सर, बीच जो आप कह रहे थे बीच जाया नहीं होने दिया, जाया नहीं होने दिया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जाया नहीं होने दिया। वहां पे जैसे अगर कोई उनको असर पड़ रहा था तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने। जो सबसे बड़ी चीज उस टीचर ने इनको दे दी ना, जो सारी जिंदगी के लिए दे दी, वो ये दे दी कि बेटा आज ही नहीं गिरे हो, कल भी गिरोगे। जब कल गिरोगे तो कल भी उठना होगा। उन्होंने तो सिखा दिया कि बाउंस बैक कैसे करते हैं। बाउंस बैक, क्रिकेट की बॉल को आप दीवार में मारे ना तो वो जमीन पे मारे तो वो जमीन पे नीचे जाएगा, तो बोला गिर गया, लेकिन वो ऊपर आएगा। तो बाउंस बैक कैसे करते हैं जिंदगी के साथ, जिंदगी की परेशानियां आने के बावजूद, ये सिखा दिया टीचर ने। अब आप उसके बाद जो है ये जो एट्रीब्यूट है, देखिए ये इंसिडेंट जो है ना, ये वन टाइम इंसिडेंट नहीं है इनके साथ। ये तो उसके बाद इनको खुद ख्याल नहीं होगा कि कितनी दफा परेशानी आई, उन्होंने उस परेशानी ने शायद इनको गिराया और ये खड़े होकर चल पड़े। उन्होंने लेकिन एहसास इस बात का नहीं किया, लेकिन ये एट्रीब्यूट इनके अंदर उस टीचर ने डाल दिया कि बेटा तुमने आज नहीं कल भी तकलीफ आई, कल भी गिरोगे, कल गिरोगे क्या उठोगे नहीं, आज गिरे हो कल नहीं गिरोगे, ये क्या गारंटी है, कल मैं नहीं होगा, आज हूं कल नहीं होगा, तुम्हें खुद उठना है। तो यही तो वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने पैदा करना है। जो आपका जो सिलेबस है, जो किताब है, जो किताब के अंदर जो सवालात हैं, 5 ईयर्स है, एग्जाम है, मार्क्स हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, वो हमारे माशरे और हमारे एजुकेशनल सिस्टम के तहत वो चल रही हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू क्रिएट इनटू योर स्टूडेंट्स, दैट इज दोज एट्रीब्यूट जो कि उनको खड़ा कर सके, जो कि उनके अंदर की पावर को बाहर निकाल सके। बहुत अच्छी बात आपने मतलब बताई। टीचर की तालीम मुझे ये ट्रिब्यूट हमने थोड़ा सा ये शुरू के आधे 1 घंटे में हमने आपके उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने आपकी जिंदगी को चेंज किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया, उनको हमने ट्रिब्यूट दी। और ये उनका राइट बनता था कि हम अगर आज टीचिंग पे बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उनको ट्रिब्यूट दें, जिसकी वजह से आप, मैं, हम सब यहाँ करते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को सबको स्टूडेंट्स बना दिया था। आप लोग टीचर के बारे में सोचना शुरू हो गए थे, राइट। अभी तक हम वहां पे तो आए नहीं है टीचर की तरफ, अभी तक तो हम वहां पर हैं कि मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या सोचता था। तो अब ये बताइए कि ये जो आप स्टूडेंट थे तो क्या ये सोचते थे कि आप
में तो कोई इस्लामियत पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई उर्दू पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है। अगर आप ये कहो कि यार मैं पढ़ाता हूँ लेकिन मैं ये कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अब ये बोलेंगे जी मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो ये तो मेल नहीं खा रही कोई बात कि जो चीज आप पसंद नहीं करते वो चीज आप पढ़ा कैसे पाएंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो यही सारी चीजें हैं, हम बिल्कुल सही पहुंच गए। ठीक है, आगे अगली स्लाइड पे आपको डेफिनेशन मिलेगी। तो ये जो टीचर की डेफिनेशन है ना, इसको हम लोगों ने खुद ही डिफाइन कर दी है, इतनी डिस्कशन, राइट। तो हम लेकिन इसको हम बात कर रहे हैं कि टीचर हैज दी, सबसे पहले बोल रहे टीचर हैज दी कैपेसिटी। टीचर हैज दी कैपेसिटी। टीचर में एक कैपेसिटी किसे कहते हैं? कोई गुंजाइश होती है उसमें। टीचर हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कहते हैं किसी को मुतासिर करना, किसी पे असर डालना, असरअंदाज होना, इन्फ्लुएंस असरअंदाज होना। तो टीचर हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, वो असरअंदाज होने की कैपेसिटी रखता है। किस पे? Influence the student. Teacher has the capacity to influence the students through inspiration, filled with passion, motivation and conviction. ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने बनाई है टीचर की। जिसको हम उर्दू में बोले तो उस्ताद के पास जज्बा, हौसला अफजाई और यकीन के जरिए तलबा को मुतासिर करने की सलाहियत होती है। यानी आपका जो बेसिक वर्क हो गया, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपका जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो ये हो गया कि आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है? इंस्पायर। अच्छा, हम इंस्पायर करते हैं या हम कुछ और करते हैं? अभी थोड़ा सा इस पे मैं बता देता हूँ। मेरे पास जैसे पोजीशन है ना, इफ आई हैव द पोजीशन, तो मैं उस पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, राइट। मैं टीचर हूं, मैं अपनी टीचर की पोजीशन को इस्तेमाल करके स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। इंस्ट्रक्शन इज नॉट द इंस्पिरेशन। इंस्ट्रक्शन इज नॉट इंस्पिरेशन। आप किसी को बाय फोर्स कोई इंप्लीमेंट कराओ, ये करना है, समटाइम इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन मैं उसकी बात बता रहा हूं प्रोसेस। लेकिन अगर आप, तो ये इंस्पिरेशन नहीं। इंस्पिरेशन जब ये है जब आप पुश स्ट्रैटेजी के बजाय पुल स्ट्रैटेजी पे काम करें। इंस्पिरेशन ये है कि आपने उसे पुश किया, ये नहीं है जब उसने खुद आपको रिस्पॉन्ड किया, जब आपको उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, आपकी बात मानना शुरू की, वो आपसे कन्विंस हो गया, आप पे भरोसा करता है, करती है, आपसे इन्फ्लुएंस है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपकी टीचिंग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और उसको मीनिंग देता है। दैट इज कॉल्ड कि वो अब कन्विंस हो गया, अब खुद करेगा, अब खुद करेगा। जो काम बच्चा खुद करना शुरू कर देना, अच्छा, वहां आपकी जीत है। आपने उसको बाय फोर्स कुछ करा दिया, जैसे रट्टाफिकेशन इज द बाय फोर्स। रट्टाफिकेशन इज द बाय फोर्स स्ट्रेटेजी। उससे मार्क्स आ सकते हैं, इंस्पिरेशन नहीं आ सकती, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है इंस्पायर कैसे कर रहे हैं। अब जैसे बड़ा मुश्किल होता है आपको, जैसे फादर है वो बच्चे को इंस्पायर कैसे करे, मदर है वो इंस्पायर करे, ये तो रिश्ते हैं जिसकी वजह से इंस्पिरेशन। आपको पता है दुनिया में 3 ऐसे रिश्ते हैं जो किसी इंसान में तब्दीली लाते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे रिश्ते हैं। कितने रिश्ते होते हैं? फुप्पो का रिश्ता है, फुप्पो तब्दीली लाती है। लोग तो हंस रहे हैं, लोग कह रहे हो भाई बाबा जज्बा होता है, उसके पास पैशन उसका होना चाहिए ना। अगर उसका पैशन ही नहीं है ये काम करने का, भाई टीचिंग में क्यों आया यार, कोई जॉब नहीं मिली इसलिए आ गया। अगर ये जवाब है भाई टीचिंग में क्यों आए हो, जब तक यार कुछ होता नहीं है ये कर लो। भाई टीचिंग में क्यों आए हो यार, 2 पैसे बन ही रहे ना इसमें, इंटरव्यू वगैरह इतना कुछ तो पढ़ लिया, पढ़ा सकते पढ़ा। अगर ये माइंड सेट है ना, कोई बात नहीं। अगर ये माइंड सेट है लेकिन निकल आए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई हो सकता है। भाई मैंने भी हो सकता है टीचिंग स्टार्ट की हो इसलिए यार 2 पैसे बच जाए। घर की जरूरत जो बेबसी और जरूरत होती है ना, ये वो पहले इंसान को अपनी जरूरत पूरी करने पे ही लगाती है। ये जो अच्छी बातें हैं बाद में आती है। तो पहले अगर ऐसा हुआ है तो दैट्स नॉट रॉन्ग,
लेकिन उसके बाद जब आप सेटल होना शुरू, जब स्टेबल होना शुरू, जब सोचने का मौका मिला, तब इस तरफ हटे, उस पर अटके ना रहे। हमें अटकने की बड़ी आदत है, हम लोग है ना अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आते। मैं एग्जाम्पल दूंगा एक आपको कि हम लोग इतने हैं कि हम लोग है ना बस फॉर ग्रांटेड होते हैं, चीजों को ऐसे ले लेते हैं, बस चल रहा है, ये मैला है, मैला रहने दे यार, चल रहा है ना, सीट पे बैठे, कील है, चुभ गई, चुभने दे यार, अगले दिन फिर उस सीट पे बैठे। मतलब the attribute to change the environment, bring the good change into the environment, वो लेकर नहीं। बहुत कुछ गलत तो हो रहा होगा, सही करने के लिए एक स्टेप आगे तो बढ़ो, वो पैशन तो लाओ, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व तो हो, उसको ओन तो करो। अब जैसे यहाँ हम यूके जाते हैं ऐसे ना, तो यूके में वो बाय ट्रिप होती है, उसमें बायर्स हमारे लिए, सप्लायर्स के लिए जो बिलियनर्स हैं, यहाँ पे बिलियनर्स हैं, उनके लिए वो जो बायर है, वो जो उनको ऑर्डर प्लेस करेगा, वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं भाई इसको तो जो कहेगी, बोलेगी राइट मैं राइट हो जाऊंगा, बोलेगी लेफ्ट में लेफ्ट हो जाऊंगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी संभालते हैं। 55% एक्सपोर्ट, जितनी भी एक्सपोर्ट होती है ना पाकिस्तान की, जिस पे एक्सपोर्ट पकड़ा होता है ना भाई मुल्क, उसमें से 55% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है। उनके जो ओनर्स हैं वो बायर्स के आगे ऐसे बैठे। तो वो एक एग्जाम्पल, उस मीटिंग हुई, चाय के कप्स रखे हुए थे, तो वो चलेगा फ्लाई वगैरह, यही आदत है ना हमारी, घर पे भी जैसी घर की आदत होगी वहां कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बायर उठी, उसने ट्रे लाई, उसमें वो सारे गंदे कप्स रखे, वहीं पे पेनिट्री थी इस तरह से नजर आ रही थी, वहां गई, उसने उनको वॉश किया, वॉश करके उसने उसको उस जगह पे उसको ड्राई किया, ड्राई करके उसको लगाया ताकि अगला बंदा जब आए तो उसके लिए अवेलेबल हो। वापस आई, मीटिंग रूम में बैठ गई, वो मीटिंग स्टार्ट कर दी दोबारा। अब आप बताइए, अगर हम कर भी लेना ये काम, तो सबसे पहले आके उस बंदे को गंदा कर देंगे भाई, हमारी आदत के हिसाब से। मैं जनरल बोल रहा हूँ, मैं आप में से नहीं, जनरल। सबसे पहले कि यार ये देखो ये काम मैंने किया है, ये आप कर लेते हैं, कब होने में कोई परेशानी है, कोई मसला है, कब अपनी जगह रखने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने करके कर दिया, ठीक है, हम नॉर्मली होते ये करते हैं। उसने अपने नॉर्मल मुझे चेंज लाना है, उसने अपने रवैये से, अपने अमल से चेंज लिया, रवैये से, अपने अमल से उसने पता नहीं कितने जहनों पे जो है ना असर डाल दिया। इफेक्ट, इटर्निटी इफेक्ट। मुझे टाइम चेक आप बताइएगा, आप चलिए बताएंगे, आपको इंटरप्रेट कर देंगे। हाँ, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो प्लीज आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा, तो हम उसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी जरूरत कर सकते हैं। तो अब अच्छा, ये अब क्लिक करते रहिएगा। तो हम लोग अगर जो पीछे गए, आप पीछे जाइएगा, बैक, कि हम पे जो बोला भाई टीचर हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, पीछे बैक, टीचर हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू इंस्पिरेशन फिल्ड विद पैशन, मोटिवेशन एंड कन्विक्शन। तो आप लोगों का सवाल होना चाहिए व्हाई, मैं कर रहा हूं क्यों, हो सकता है तो बच्चे देखेंगे, हम और आप बात कर रहे हैं, ये बच्चे कैसे बात करेंगे, बच्चे कैसे सोचने को, बेटा ये बुरा जो हो रहा है, अब्बू ने जो डांटा, अम्मी ने जो डांटा, हालात जो खराब है, तुम पंचर की दुकान पर काम करो, यू हैव टू राजी विथ योर गॉड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि तुमने इसी से, अल्लाह ताला चाहता है तुम यहां से चेंज ला, उसको अच्छी पिक्चर दिखा दे। अल्लाह चाहता है, कोई बोले हमारे तो हालात ऐसे हैं, बच्चे ऐसे आते हैं डेफिनेटली, हमारे तो हालात ऐसे, हमारी तो परेशानी। बेटा परेशानी नहीं है, ये परेशानी नहीं है, ये तो आपके हालात आपको तैयार कर रहा है अल्लाह ताला, आपको अल्लाह ताला तैयार कर रहा है किसी चीज की। मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, मेरी अम्मी का बुला बुला बुला, बेटा ये तैयार कर रहा है, आपको पता नहीं कहाँ पहुंचना है। दुनिया के बड़े बड़े नाम आप देख लीजिए, जो उनके पीछे चले जाइए, वो सब इसी हालात और वाकयात से गुजरे हैं। टू रिस्पेक्ट बेटर, रिस्पेक्ट बेटर, हम कहते हैं रिस्पेक्ट कर रहा है बस काफी है, रिस्पेक्ट बेटर होती है, रिस्पेक्ट बेहतर से बेहतर होती है। आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, क्या किस हद तक करनी चाहिए, तो ये आपने उनको सिखाना है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं, जो रिस्पेक्ट देता है, ऐसे ही। अब मैं बोलूं जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, भाई आपका काम क्या है, बहसियत इंसान, बहसियत अशरफुल मखलूकात, आपका काम क्या है,
आपका काम वो है कि रिस्पेक्ट देने की है या रिस्पेक्ट उस सूरत में देने की है जब ये रिस्पेक्ट देगा, ये बताइए। रिस्पेक्ट देने की है। जब ये बात हो गई कि इज्जत दो, भले उसके बाद इज्जत मिलेगी लेकिन ना मिले तो फिर इज्जत दे। आपका काम तो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी ना, वरना आपको रिमोट कंट्रोल थोड़ी है दूसरे का कि वो बोला देखो ये इज्जत देगा, रिमोट चलाया, अब देखो ये बेइज्जती करेगा। क्यों? क्योंकि मैं बेइज्जती करूंगा। आप रिमोट कंट्रोल हो किसी का, आप रिमोट कंट्रोल नहीं होना ये चाहिए यार, इस बंदे को मैं कुछ भी कहूंगा ना ये इज्जत देगा, ज्यादा इग्नोर कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ये एट्रीब्यूट क्यों नहीं आता? टॉलरेंस का, पेशेंस का, बर्दाश्त का, दरगुजर का, इग्नोरेंस का, माफ करने का। बोले मैं अच्छा इसको माफ कर दूंगा, इसने गलती की है मैं माफ कर दूंगा, कर दूंगा क्या होता है? वो माफी मांग ले, माफी मांग ले, ठीक है? माफी मांगना एक अच्छी बात है। अगर नहीं मांगता तो नहीं माफ करो। मतलब इस लेवल पे क्यों नहीं चले जाते? इस लेवल पे क्यों नहीं चले जाते? वो माफ सोने से पहले से माफ करके सो जाते, इस लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन सभी के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस खानदान में होता रहता है। कुत्तों की बात हुई थी, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सोने से पहले अगर माफ करके सो जाए तो दैट इज कॉल्ड कि वी आर रिस्पेक्टिंग बेटर। मैंने अल्लाह की खातिर अल्लाह की रजा की, मैं राजी हो गया उससे, मैं राजी हो गया। अल्लाह तूने ये परेशानी थी मैं राजी, तूने ये मुसीबत थी मैं राजी, तूने बीमारी थी मैं राजी, ठीक है? तूने ये इन लोगों ने मेरी बेइज्जती दी, या इज्जत तो तू देता, मैं राजी। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने इनको माफ किया, मैं राजी। ये एटीट्यूड नहीं आ सकता, आता नहीं है। मैं बताऊं, सुनने में अच्छा लग रहा है, नफ्सियाती तौर पे ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मली जैसे आप सफर में देखें, गाड़ी में किसी ने आपको जरा सा टच किया या आगे से, तो आप उसको फौरन रिस्पॉन्ड करोगे जो आम हालात में होता है। आप उसको कुछ सुनाओगे या जो भी आम हालात में सड़क पे होता है, कोई उसको इग्नोर नहीं करता है, बहुत कम, मतलब करते हैं कम लोग। तो हम इग्नोर कर सकते हैं। मैं एक दफा बोला, गाड़ी लग गई थी कहीं ना, किसी ने गाड़ी पीछे से, मैं रुकी भी थी, गाड़ी ठाक करके मार, तो पुरानी बात है, ठीक है? मैं उतर के उसका गले का हार हो गया। भाई जो सच्ची बात है वो बता, इंसान सीखने के दौर से गुजरता है। मैं बोलूंगी मैं तो बचपन से ही मैं अच्छा हूं और अच्छी है कि मैं एंड पे पहुंच गया हूं, ये ऐसा कुछ नहीं। इटर्निटी होती है सीखने का, ठीक है? आपने सीखते जाना है। तो मैं गाड़ी ठोकी उसने, मैं उसके गले का हार हो गया, वो भी परेशान। आपने अच्छी नियत और अच्छी सोच रखी ना, तो बुरी चीजें जो हादसाती चीजें भी होती है ना, वो भी रुक जाती है, ठीक है? तो आप लोग हाई इंटेंशन और अच्छी नियत का आदमी लाख दर्जे बेहतर है हाई इंटेंशन और अच्छी नियत का आदमी जिसकी स्किल सेट कम हो, जिसका नॉलेज कम हो। लेस नॉलेज, लेस स्किल सेट बट हाई इंटेंशन, ठीक है, is much better than the person who has the low intention but high skill set. किसी शख्स का स्किल सेट बहुत हाई है, a person who is highly educated, having a high skill set but with very low intention, वो उसके अंदर सिर्फ ये है कि मैं अपना फायदा कैसे देखूं, ठीक है? वो शख्स ज्यादा बेहतर है जिसकी नीयत अच्छी है, उसका नॉलेज बढ़ेगा, आ जाएगा। To shine better, to develop better, to discover better. Develop better, अपने आप को भी डेवलप करना, दूसरों को भी डेवलप करना। To discover better, discover better मतलब हर बंदा डिस्कवर ही कर रहा है। ये पता है आप लोग कोई दुनिया में कोई चीज इजाद हुई है? कोई चीज, कोई एक नाम बताएं, कोई चीज इजाद हुई है? कोई चीज कोई तो इजाद हुई होगी, इतनी तो बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे लाइट इन्वेंशन, बल्ब इन्वेंशन, फोन इन्वेंशन, ये इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है? इनको हम इन्वेंशन कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इट्स अ डिस्कवरी। इट्स अ डिस्कवरी के इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं और इस एनवायरनमेंट में, इस सिचुएशन में, इस केमिकल के साथ जब कोलाइड करते हैं तो रोशनी पैदा होगी। दैट्स अ डिस्कवरी। ये इससे पहले भी तो हो सकता था, किसी ने आया, किसी ने रिसर्च करी, उसको डिस्कवर हो गया, ठीक है? वो एक, यानी कि इंफॉर्मेशन इज हिडन, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर,
अच्छा वो ग्रेविटी वाला है ना, वो जो फल नीचे गिरा था, वो कौन था जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी आइंस्टाइन, न्यूटन। फल नीचे गिरा तो उसको पता चला, तो अच्छा जब फल नीचे गिरा उसको पता चल गया कि भाई ये होती है ग्रेविटी। अच्छा उसके बाद फल ऊपर जाना शुरू हो गए क्या? नहीं, आज भी फल नीचे ही गिर रहे हैं, उससे पहले भी नीचे गिर रहे थे। यानी ये उसने कुछ इजाद नहीं किया था, उसने डिस्कवर किया। ये तो प्योर डिस्कवरी थी। मोबाइल फोन है, ये भी बहुत सारी डिस्कवरीज के एक बेटर कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप इजाद का नाम दे दो, लेकिन दुनिया में आप कुछ बनाने की हैसियत नहीं रखते। मक्खी बनाने की कोशिश करी ना उन्होंने, तो हेलीकॉप्टर बनाया इतना बड़ा, वो भी गिरता रहता है। ठीक है, मक्खी को आप पकड़ नहीं सकते उसको, उसकी स्पीड को, उसकी रिएक्शन को, उसकी इंस्टिंक्ट को, उसकी फीलिंग को आप नहीं पकड़। मक्खी है छोटी सी, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कुछ बना नहीं सकते। बोलो भाई पानी बना लो, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O दो, इससे हाइड्रोजन बना लो, वो भी किसी चीज से बनाएगा तो उसको बना लो। अच्छा फूड बना लो, जैसा बनाते तो है, हमारी अम्मी बनाती है घर पे। कैसे बनाती? वो सब्जी है या और गोश्त है, तो गोश्त बना लो। नहीं, गोश्त तो मिल जाता है, तो सब्जी बना लो, सब्जी जमीन से मिलती है, और वो जिस जहां से गोश्त मिल रहा है उसको भी सब्जी मिल रही है तभी तो। और आखिर में पीछे जाएंगे तो क्लोरोफिल ही निकलेगा। आखिर में पता चलेगा भाई क्लोरोफिल है जो अल्टीमेट फूड है पूरी दुनिया का। ठीक है, इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो है वो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, अगर पौधों ने एक दिन हड़ताल कर दी तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया, जानवर भी खाने से रहेगा, आप भी खाने से रहेगा। कब तक खाओ? जानवर खत्म हो जाएंगे, फिर क्या खाओगे? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू सर्व बेटर, टू इन्वेस्ट बेटर, टू फोकस बेटर, टू गेट बेटर, टू टॉलरेट बेटर, टू प्रैक्टिस बेटर, टू डिसाइड बेटर, टू लिसन बेटर। एक एक वर्ड जो है इसमें हीरा है। इसमें आपको सोचना है कि ये जो वैस भाई आए थे उन्होंने लिखा गेट बेटर, क्या मतलब, क्या लिख दिया उन्होंने, क्या मतलब, क्या हासिल करें, क्या अच्छी चीज हासिल करें। हम लोग जो है ना सौदे करते हैं, बड़े बुरे सौदे करते हैं। हम जो है ना हम जो है दौलत का सौदा करते हैं, इज्जत का सौदा करते हैं दौलत के नाम पर। वी आर नॉट गेटिंग बेस्ट थिंग। हम प्लेजर का सौदा करते हैं पीस के नाम पर। हम पीस दे देते हैं, प्लेजर ले लेते हैं। हम लोग क्या सोच है यार। सो यू शुड इन्वेस्ट टाइम विद स्टूडेंट्स, यू शुड हैव बेटर थिंग। व्हाट इज द बेटर थिंग? इस भाई दे देना, देने के बाद सुकून हासिल कर लेना बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आप पैसे है कि तरबियत वो आपने बीज जो है ना सही मिट्टी में लगाना, सही मिट्टी में लगाना। अगर सही मिट्टी में नहीं लगाया ना वो बीज, तो भले वो बज़ाहिर फर्स्ट आ रहा हो, मार्क्स ले रहा हो, लेकिन अगर उसकी यहाँ पे अगर वो फर्स्ट नहीं आ रहा ना, इखलाकी तौर पे अगर फर्स्ट नहीं आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम, और उसका जिम्मेदार हम ही सब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो होंगे। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो ये चीजें डेवलप करें, तो ये हंसती मुस्कुराती ये तस्वीरें हैं बच्चों की जो इट्स नॉट इजी टू हैंडल दिस, नॉट इजी। उसमें अल्टीमेटली जो हम पहला काम करते हैं, हम पहला काम ये करते हैं कि हम डिसिप्लिन के नाम पे हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। वो जो चीजें हम स्किप कर देते हैं वो उसमें स्लाइड में नहीं है, एकदम से मुझे याद आ गई। तो जो चीजें हम स्किप कर देते हैं उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए उठाइए क्योंकि हमने इस पर बात कर ली है और माशाल्लाह बहुत अच्छी। हम स्किप कर देते हैं। हम हमारी जिम्मेदारी जो है ना कहाँ से शुरू होती है? ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो पहला स्टेज है ना, वो जो पहला स्टेप है, आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, आप बोले कि मैं बहुत लगन के साथ पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगी बहुत लगन के साथ, अच्छा लगन के साथ, लेकिन नजर नहीं आ रहा यार, आप इन चीजों को मिस कर रहे हो, आप टाइमिंग, आप छुट्टी कर रहे हो,
आप मतलब कहाँ गए हो आपका पैर? इंटेग्रिटी इज इम्पोर्टेंट, कि आप जो कह रहे हो, जो बोल रहे हो, जो वादा कर रहे हो वो एक। उसके बाद आता है ट्रस्ट। अच्छा, जिसने इंटेग्रिटी पे काम कर लिया उस पर भरोसा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। उस पर जब भरोसा डेवलप हो जाएगा, इंटेग्रिटी पे काम कर लिया तो भरोसा, हम वो मुंह से जितना बोलते रहे यार मुझ पर भरोसा करो, भाई मुझ पर यकीन करो, बोले अब दिल में सकीम भाई बोल रहे हैं यार मैं यकीन तो करूँ आप, लेकिन अभी कह रहे हो कि कुछ और कहो। ठीक है, ये तीन पर्सनैलिटीज है सर, एक्सपीरियंस है। आप बोले यार आप बोल तो रहे हो लेकिन आपके अल्फाज हो जाते हैं चेंज। आप बोल लो कल को बोलोगे यार मेरे साथ ये मसला हो गया था भाई, क्या बताऊँ, कह रहे हैं मुझे पता तो ये आपने किया भाई, ये कब तक हो जाएगा? सर ये हम इंशाल्लाह ये कोर्स को जो है ना इस डेट तक हम कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, इस डेट तक हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे। बच्चों में ये एक्टिविटीज हैं, ये प्लान करना, ये चीजें ये हम करा देंगे। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, नहीं हुआ सर इसलिए नहीं हुआ, देखा मैं आपको गिनवाऊंगा, वो गिनवाना शुरू करेगी, ये मसला हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, ये कहानी हुई, लेकिन इंटेग्रिटी पे कहानियां कुछ भी हुआ करें, आपको सबसे पहले हर चीज को बेटर साइड याद है बताया था, आपको भी तो बेटर साइड करना है। जो चीजें बता रहे हैं ना हम यहाँ बच्चों के लिए करनी है, सबसे पहले हमें अपने साथ करनी होगी। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो करने होंगे, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं आप में, जो आप कर रहे हो, जो आपकी पर्सनालिटी को जैसे परसीव करे। सही कह रहा हूँ, यस और नो? यस। तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना, तो ट्रस्ट डेवलप करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। जब इंटेग्रिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, फिर आ जाती है अलाइनमेंट। उसके बाद आता है कमिटमेंट। ठीक है, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अलाइनमेंट, कमिटमेंट। फिर आ जाता है राइट एक्शन, फिर आता है रिजल्ट। जो आपकी जर्नी बताई है ना मैंने, अगर आपने बच्चे को रिजल्ट पे लेके जाना है, अगर आपने कोई रिजल्ट ड्राइव करना है, आपने शुरू इंटेग्रिटी से करना है। पता चला मैं खुद तो वो काम नहीं कर रहा और कहने को कह रहा हूं, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? ट्रस्ट नहीं करेगा। जब वो ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे अलाइन होगा, आपसे मुत्तफिक होगा, मुत्तफिक नहीं होगा। जब मुत्तफिक नहीं होगा तो दिल में तो कुछ कह रहा होगा, सामने कुछ कहेगा। जब मुत्तफिक नहीं होगा तो उसकी कमिटमेंट आएगी, यानी उसका पैशन, उसका इरादा आएगा कि मैंने ये करना है, इरादा भी नहीं आएगा। जब इरादा नहीं आएगा तो राइट एक्शन आएगा, एक्शन भी नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके जंप मारते हैं यहाँ पे, और बच्चे को बाय फोर्स कहते हैं ये रिजल्ट डिलीवर कर, क्यों कर? हम डायरेक्टली बोलते हैं बस ये रिजल्ट है, जैसे भाई ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, कुछ भी होता है। अब वो तमाम प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाया, अलाइन नहीं है, कन्विंस नहीं है, उसको पता नहीं है उसको करना क्या है, क्यों करना है, कमिटमेंट नहीं है, करना चाहता नहीं है, वो करना किसी असाइनमेंट दिया है, करना चाहता नहीं है, उसको बताया आपने, उसको ट्रस्ट बिल्ड किया, इंटेग्रिटी डेवलप करी, उसको उसके फायदे, उसके नुकसान, उसको आगे कैसे होगा, कितना मजा आएगा, कितना एंटरटेनिंग होगा, वो सब चीजें डेवलप करी। आप सीधा ये असाइनमेंट दे रहे हैं, टाइम कम है, 10 मिनट रह गए मेरा पीरियड ओवर होने में, ये रिजल्ट चाहिए, खत्म बात हो गई, बात एक प्रोसेस हमेशा नहीं है। बच्चों के साथ एक दफा इंटेग्रिटी डेवलप हो गई ना, एक दफा तो ट्रस्ट डेवलप हो गया। ट्रस्ट डेवलप हो गया तो जब भी आप असाइनमेंट देंगे, कोई बात समझाएंगे, कोई चीज करेंगे, तो वो अलाइनमेंट डेवलप होगा। अलाइनमेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी तो कमिटमेंट आएगी, राइट एक्शन आएगा, ये एक चाहता था कि आपको थोड़ा सा। अच्छा, अगली स्लाइड पे आप जाएं, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज योर जर्नी टू बिकम द ग्रेटेस्ट टीचर। भाई गुड टीचर नहीं कह रहे, बेटर टीचर नहीं कह रहे, ग्रेट टीचर नहीं कह रहे, ग्रेटेस्ट टीचर कह रहे। इसलिए कह रहे हैं
कि ताकि आप इस सफर में जितना ऊपर जा सकते हैं आप एक क्लिक कीजिए इसको, तो एक ऊपर से बॉल आके गिर जाएगी नीचे, आप दूसरा क्लिक कीजिए तो तीसरा क्लिक कीजिए, तो ये बताएगा कि एक टीचर तो होता है मीडियोकर टीचर होता है। मीडियोकर टीचर कह रहे हैं हम, एक मिडिल का मतलब जिसने अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, वो बताता है। रट्टाफिकेशन वाले जो होते हैं ना, वो सिर्फ बताता है, वो टॉपिक को बताता है। कॉल आगे जाएगी अगर आप क्लिक करेंगे या फिर बोलो, ये भी कोई स्किल होगा, वो कंप्यूटर वाला एक्सेल वाला जानता होगा। अच्छा, ये मैं एक्सेल मैंने किसी से सीखा नहीं, एक्सेल किसी से सीखा नहीं, लेकिन अगर कोई चीज करने के लिए आपके पास सारे टूल्स सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप बोले मुझे तो कोई सिखाता नहीं है, आपको सिखाता नहीं है भाई, यूट्यूब अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, यू शुड यूज द राइट वे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप आगे बढ़े तो उसमें आपका दूसरा टीचर है गुड टीचर। वो टीचर है एक्सप्लेन करता है, डिटेल बताता है, उसकी तफसील बताता है। तीसरा टीचर कौन सा है? सुपीरियर टीचर। सुपीरियर टीचर वो है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, करके दिखाता है। फिर अगला है ग्रेट टीचर, जो इंस्पायर करता है, जो मुतासिर करता है, जो फुल स्ट्रेटेजी आ गई, स्टूडेंट खुद उनसे सीखना चाह रहा है। फिर आ जाता है अगला ग्रेटेस्ट टीचर, जो लीडर्स क्रिएट करता है, तो इनके अंदर से वो लीडरशिप स्किल्स है वो बाहर निकालता है। देखिए कि ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ ऐसे काम करता है। आप अपनी जर्नी को एक ब्लैक वाले से स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ बता देने वाला ही सब्जेक्ट बता दिया, जो भी आता है वो बता दिया, लेक्चर है वो बता दिया, ठीक है भाई रट्टा मारो, कुछ भी करो, पास हो, वो आपका फर्स्ट लेवल है। फिर आगे आप जैसे बढ़ते गए, आपने कोशिश करनी है, ये सबसे बेकार वाला कौन सा? आखिरी वाला, वेयर यू आर क्रिएटिंग लीडर्स, और ये अंधेरे से उजाले में जाने का सफर, राही से भलाई की तरफ जाने का सफर, ये आप अगर आप डेवलप, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, आपको क्या करने की जरूरत है? देखिए भाई सच्ची बात है, दुनिया चेंज हो गई है, बहुत कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। जैसे टीचर पढ़ाते रहे ना, आप न्यूनेस लेकर आए, आप लोग आइडियाज दें मैनेजमेंट को, सर दुनिया बहुत चेंज हो गई, हमें यूट्यूब की कोई जैसे कोई अच्छे लेक्चर्स हैं, कोई वीडियो है जो बच्चे की कोई तब्दीली ला सके, हमें वो सेशन रखना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन को नहीं कर रहा, जस्ट यू शुड कम आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कोई एक्टिविटी करानी चाहिए, आपको बच्चों में क्यूरियोसिटी, जैसे ये है मस्ट टेक एक्शन, क्या क्या करना चाहिए आपको, तो ये भी तो चाहिए ना आपको क्या क्या करना चाहिए। आप ये समझे, आप सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यू मस्ट लव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर हो गया। सबसे पहले अपना पैशन रखें, अपने टीचिंग के प्रोफेशन को जब तक है इसमें, जब तक है, जब तक जिंदगी रहेंगे। भाई मैं कहीं पर भी हूँ, मैं काम तो यही कर रहा हूँ, आपने सिखाने का अमल हमेशा जारी रखें। यू मस्ट बिलीव यू आर डीलिंग विद लीडर्स। सबसे पहले एक बात का यकीन रख लीजिए कि आप लोग किससे डील करते हैं क्लास में जाते हैं, बताइए। बच्चे से डील नहीं करते हैं आप, लीडर से डील करते हैं, जो ऑलरेडी जो है वो अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, एक अपनी सोच रखता है, वो छोटा है बस, लेकिन आप उसको जब आप उसके दोस्त बनेंगे, जब आपको एहसास होगा कि इस वक्त सामने, जैसे सामने मैं एग्जाम्पल किसी के, कोई लीडर का नाम लेंगे, किसी लीडर का नाम लेंगे, इमरान खान सामने बैठे हैं, ठीक है, आपको इमरान खान से बात करनी है, तो आप कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होंगे ना, कहीं ना कहीं तो आप इन्फ्लुएंस हैं कि आप थोड़ा सा अच्छी तमीज मानेंगे, अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। जो बात समझाना चाहते हैं और कम वक्त में समझाना चाहते हैं, आपकी कोशिश होगी कि मैं किसी तरह से इसको ये बात इस तरीके से समझा दूं। ऐसा तो नहीं होगा आप जाते ही उसको डांट डपट शुरू कर दें, तो मैं समझ नहीं आता